Good evening, students. Rushti sir again. In continuing the discussion on difference between EMF and potential difference in EMI. This is lecture 4. Very interesting discussion today. My credentials, I don't want to overemphasize this. You are must be very familiar with this. So what I'm going to discuss today, I'm going to discuss the case of this is the case of a non-homogeneous conducting ring. Yesterday I discussed homogeneous conducting ring. Now it is non-homogeneous conducting ring. Okay. Kept in a uniform magnetic field, changing with time, existing in a cylindrical region like this. Okay. This is the ring shaded in green and gray. This is not a homogeneous one. This half is different than this half in material property. In the cylindrical region, B is increasing into the plane at a rate of dB by dt. And if PAQ half of the ring is having resistance R, then PBQ half of the ring is having resistance eta R, eta greater than 1. अगर ये R है PAQ, सो PBQ R से ज्यादा है. ठीक. So the conducting PAQBP has a resistance R in the PAQ half and eta R, eta greater than 1 on the PBQ half. See the figure 1. देख लो भाई figure 1. कोई दिक्कत ना आए आगे. The magnetic field is uniform over area but increasing at a rate of dB by dt into the plane. It exists in the cylindrical region along its axis. Okay, the ring lies coaxially fully inside the cylindrical region. बहुत क्लैरिटी के साथ हमने लिखा ये चीज को. Find the electrostatic field inside the ring. तो जो electrostatic field है, which will be creating a potential difference, उसको फाइंड करना है. मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. यस्टरडे जो डिस्कशन था हमारा जो VDL 112 में, वो यूनिफॉर्म रिंग था, उसमें EMC एक्ट कर रहा था लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं था. कोई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स वाज 0. यू रिमेंबर दैट? ओके, रेफर टू दैट लेक्चर BD, that is VDL 112. उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सेम as we have discussed. B is increasing at a rate of dB by dt, so ENC appears in anticlockwise manner in circular loops, and also ENC passes through the red color is ENC, the red arrow mark are the NC means non-conservative field. Okay. ENC acts anticlockwise from lens closed loop. VDL 110 में हमने डिस्कशन किया है. ENC वैल्यू R/2 dB by dt, ये भी हमने डिस्कशन किया है. ENC इनसाइड द रिंग इज बी, रेडियस तो A है रिंग का, ये हमने लिख भी दिया रेडियस A करके. सो A/2 dB by dt. तो टोटल ये में क्लोज रिंग में कितना होगा? Area pi a square into dB by dt. Anticlockwise manner EMF will be induced. टोटल रेजिस्टेंस होगा R प्लस ईटा R. इस सीरीज में दोनों है तो 1 प्लस ईटा इंटू R. सो करंट इन द रिंग विल बी एंटीक्लॉकवाइज मैनर pi a square dB by dt is the EMF. टोटल रेजिस्टेंस ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत बच्चे वाली चीज है ये. सो आई शो ओनली द रिंग फॉर क्लैरिटी. अभी और रिंग को इधर दे क्लैरिटी के साथ थोड़ा विड्थ बढ़ा के, सो दैट आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैंने ड्रॉ किया इधर. ठीक है. ओके. रिंग का रेडियस स्मॉल है, याद रखना. अब बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा
मैं तो ड्रॉ कर देता हूं भाई, क्यों आप चूचू करेंगे बाद में, एक किधर गया, ठीक। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड क्यों आएंगे वो तो देखेंगे। हमने लिख दिया, जो ग्रीन एरो है वो अपोजिट टू ईएनसी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है PAQ में अपोजिट टू ENC है, एंड PBQ में सेम डायरेक्शन एज ENC है, एक मार्क करो उसका। सो पहले वो क्लियर हो जाएगा अभी। सो VDL 110 में हमने निकाला था EPAQ क्या है, तो ज्वाइन कर दो ऐसा, फिर पाई A स्क्वायर बाई 2 इंटू dV/dt है ना, और ENC इंटू पाई A, जो भी करो तो ये आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम P ट्रैवलिंग टुवर्ड्स Q, स्टार्ट करो P से Q की तरफ जाओ। सो VP प्लस ENC फ्रॉम P to Q minus IR of this PAQ is R, capital R minus IR, so is equal to VQ, ठीक है, R PAQ is capital R, so EPAQ pi a square by 2 dV/dt माइनस ये I तो हमने निकाला इक्वेशन 4 में, ये ठीक, आर आर कैंसिल हो जाएगा, फिर आप देखो क्या आएगा, VP प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 2 dV/dt माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ईटा dV/dt इज इक्वल टू VQ। सो पाई ए स्क्वायर dV/dt कॉमन लेने से दैट इज बी हाफ माइनस 1 बाई 1 प्लस ईटा, इट विल बी 2 इंटू 1 ईटा प्लस 1 ईटा माइनस 1, ऐसे रहेगा, है ना। आपको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। सो VQ माइनस VP यही आएगा, क्योंकि ईटा ग्रेटर देन 1 हुआ था तो इसको पॉजिटिव रखा, तो VP को इधर ले आया। सो VQ माइनस VP विल बी दिस पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट मीन्स ईटा ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव है, तो VQ माइनस VP पॉजिटिव है। इक्वेशन 7 को मार्क करो, VQ माइनस VP, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड P, Q ग्रेटर P स्मॉलर, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल एग्जिस्ट करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो दैट कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हमने आपको बहुत पहले डिस्कशन किया VDL 110 में, EMF ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ड्यू टू कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके फाइन, so electrostatic field does exist inside the ring pointing along QAP direction in the decreasing direction of potential point करेगा, जो Q से P तक पॉइंट करेगा, क्योंकि Q ग्रेटर है, VQ ग्रेटर देन V। कितना होगा फिर, VQ माइनस VP, इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट DL इंटीग्रेशन Q से P तक होगा ES इंटू पाई A। सो E इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा, जो VQ माइनस VP डिवाइडेड बाई पाई A, है ना। VQ माइनस VP ये हमने निकाला इक्वेशन 7 में, ये डिवाइडेड बाई पाई A, सो A रहेगा सिर्फ इधर, बस वही रह गया A/2, पाई A कैंसल, A/2 ईटा माइनस 1 बाई ईटा प्लस 1 dV/dt हो गया EES अलम QAP, Q से P को ये हो गया ES। बट एक बार VQ और VP निकल गया तो VP माइनस VQ whether you calculate from above or below will be same only, okay, because ये greater than this means electrostatic will point like this as well as like this. Here it is in direction of ENC and here it is opposite to ENC. Now it is clear why it is in the PAQ it is opposite to ENC, and in P and in QBP it is in the direction of ENC. चलो आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो रहा लग रहा मेरे को। अंडरस्टूड दिस? ये आ गया आपको। VQ minus VP does not depend on whether one travels along QBP path or QAP path, क्योंकि VQ is a unique value, VP is a unique value. Therefore,
electrostatic along QBP into pi a also that V cube minus Vp. So E electrostatic along QBP also 1 by pi a divided V cube minus Vp is this here. So same value I'll get a by 2 eta minus 1 by eta plus 1 dV by dt along QAP. So इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो भी इधर है कोई उधर है, क्योंकि वी क्यू माइनस बीपी तो सेम है, पर ये पाथ भी इक्वल टू से, तो ई इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर जो है इधर वही है. इट इज पॉइंटिंग एंटी क्लॉकवाइज हियर, इट इज पॉइंटिंग क्लॉकवाइज हियर. व्हिच वन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो. चलो कोई नहीं, ये आ गया. ओके QAP पे जो था QBP में वही आया. दिस इंप्लाइज नेट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट्स एट Q. अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा इधर से इधर, इधर से इधर, तो यहां पर होगा नेट पॉजिटिव चार्ज. यहां पर जो टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन दैट विल बी नेगेटिव चार्ज. सो चार्ज एट Q विल बी पॉजिटिव, चार्ज एट P विल बी नेगेटिव. कोई बात मैंने रेड लेटर में लिखा. इक्वल positive charge accumulates at Q and equal amount of negative charge accumulates at P. Why equal amount? Because this ring is neutral. So electrostatic field lines originate from Q and terminate at P, passing through the ring. इसमें क्या लिखा? अगर मैंने BQ minus BP कैलकुलेट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम Q, फर्स्ट इधर स्टार्टेड फ्रॉम P देन ट्रेवल टुवर्ड्स Q, फिर Q से शुरू करके P तक जाएंगे, ट्रैवलिंग फ्रॉम इन QBB पाथ अपर हाफ, ऐसा शुरू करेंगे, इस पाथ में P तक जाएंगे, तभी वही आएगा. देख लो कैसा आएगा. कोई जरूरत नहीं करना, लेकिन जस्ट कंफर्म कर रहा हूं. BQ प्लस EQBP EQAP सेम है, पाई स्क्वायर बाई 2 dV by dt माइनस I into eta r, that is I is pi square dV by dt eta plus 1 r into eta r is Vp. So VQ is equal to pi square dV by dt minus pi square eta by eta plus 1 dV by dt. उस टाइम में खाली pi square eta by 1 था, VP इधर था, VQ इधर था. So VQ minus VP will be pi square into eta by eta plus 1, VQ minus pi square common, eta by eta plus 1 minus half dV by dt is VP. So VQ is equal to VQ minus VP is equal to pi square by 2 eta minus 1 by eta plus 1 dV by dt. इक्वेशन 10 सेम है कि नहीं? इक्वेशन 7 का बराबर. इक्वेशन 7 मार्क करो. VQ माइनस VP, हम PAQ से पाथ में गए, अभी QBP पाथ में जाकर हमको क्या मिला? सेम है कि नहीं? देखो रेड में इधर आया है, eta minus 1 by eta plus 1 pi square by 2 dV by dt, same as in equation 7 as expected. So ES along QBP अगर आ गया तो आपको pi a में डिवाइड कर देना बस. So E आ गया. So same as equation 9 as expected. कितना इजी क्वेश्चन था. लोग घबरा जाते हैं, कंफ्यूज नहीं आता. भाई वो पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अंदर, वो बोलते हैं ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है. बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना बेटा. ये कभी कभी लैंग्वेज में ऐसे यूरोडॉट टाइप का लोग उसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दे शुड मेंशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या अंदर. ठीक है, क्या बोलेंगे? तो किताब लेके के बैठ गए, कोई कोई गुजर चुके हैं, हम क्या कर सकते. फिर हमको जो समझना समझ लेंगे आराम से, इजीली जो करेक्ट चीजें समझ लेंगे. वी अंडरस्टैंड दी correct thing only from their writings. Maybe the translations and all these are not so accurate from Russian to English. So let's go to the page number 2 for a similar problem current electricity. मैं हमेशा वो जो ये में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस दे ही देता हूँ आपको. जो VDL 112 में भी ऐसे ही था. तो पेज 2 में ही उसको मैंने डिस्कशन किया. चलते हैं पेज 2. चलो जाएंगे, चलो बिल्कुल जाए. पेज 2 में आ गए, ये लो आ गए हम पेज 2. पेज 2 लिख देता हूं, आप चूचू नहीं करेंगे.
इसमें एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये एक कंपोजिट रॉड है, ये साइड का कॉपर है, ये साइड का एल्यूमिनियम है, ये इंटरफेस है। करंट फ्लो कर रहा है, मतलब वी हैव शोन ए पार्ट ऑफ द सर्किट, करंट इज फ्लोइंग, स्टेडी करंट आई इज फ्लोइंग, ओके। सो ये दोनों डिफरेंट मटेरियल है, so there is a material change here. I discussed earlier that there is a material change in a circuit. At that point charges will accumulate. So interface में कितना चार्ज accumulate होगा? क्या करेंगे, मैं एक गसियन सरफेस ले लिया, ये मेरा गसियन सरफेस है, ये आपको मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ। ये जो है मेरा गसियन सरफेस है, एक सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस, अभी मैं रेड में लगा दिया उसको, ठीक है। ये जो एरिया है एंड फेस, ये एंड फेस, ये आर क्लोज टू द इंटरफेस। ये डिस्टेंस क्यों दिखा बड़ा, क्योंकि नहीं तो देखने से क्लैरिटी नहीं आएगी, फिर वो डायग्राम में क्लैरिटी के लिए हमने ये थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया। अदरवाइज रिमेंबर इन योर बैक ऑफ माइंड दिस फेस and this face of the Gaussian cylindrical surface, they are close to each other on both sides of the interface. थोड़ा मैं कहीं लिखा भी है, construct the cylindrical Gaussian surface whose end faces lie very close to the interface on both sides of the interface. उसके बाद गॉस लॉ अप्लाई कर दो भाई। ये एरिया आउटवर्ड नॉर्मल है, ये एरिया आउटवर्ड नॉर्मल है, लेकिन ये E1 है इनवर्ड, E2 है आउटवर्ड। सो E डॉट ये इंटीग्रेशन, साइड फेस तो एरिया 0 है, तो उसका साइड फेस का E डॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो एंड फेसेस का E1A माइनस साइन, दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, बट सेकेंड फेस के लिए E2A प्लस, है ना। तो टोटल नेट E डॉट डी इंटीग्रेशन होगा माइनस E1A प्लस E2A। ये आपको बहुत इजीली मालूम हुआ होगा अभी तक। So E dot dA integration over the closed Gaussian surface will be E2 minus E1 into A, that is Q net enclosed by epsilon 0. This Q net enclosed is on the interface by epsilon 0. So, but already we know J, current density I by A is E by rho, है ना। तो E2 होगा rho 2 I by A, E1 होगा rho 1 I by A. Rho is the resistivity of the material. So E2 minus E1 कितना होगा बेटा, rho 2 minus rho 1 I by A into A is the Q net enclosed by epsilon 0. So Q net enclosed, that is Q at the interface, how much, rho 2 minus rho 1 into epsilon 0 I, है ना। बस आंसर आ गया। अब बोले यही तो छोड़ दे रहा, फिर क्या डिस्कशन आगे करने वाले हो। मैं थोड़ा एक न्यूमेरिकल डाटा लेके थोड़ा आपको समझाता हूं। कॉपर का रो कितना है भाई, रो 1 जो कॉपर है 1.68 10 to the power minus 8 ओम मीटर at 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। रो 2 क्या है एल्यूमिनियम का, 2.65 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो रो एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम। सो ये वाला अगर हम इक्वेशन लगाएंगे, क्यू नेट एनक्लोज कितना आएगा, क्यू इंटरफेस रो 2 माइनस रो 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट आई। आई कितना 1 एम्पियर करंट दिया ना में, आई इज 1 एम्पियर। तो सब डाटा तो मालूम हो गया फिर अभी आपको, तो क्या चिंता करने का है। तो 2.65 minus 1.68 10 to the power minus 8 into 8.85 10 to the power minus 12 एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है into 1 एम्पियर आ गया। ये आपको 8.58 into 10 to the power minus 20, ठीक है ना। कूलम कितना आया 0.86 10 to the power minus 19 कूलम। आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे भाई, अभी तक हमने पढ़ा कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मिनिमम चार्ज जो है 1.6 10 to the power minus 19, या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल, उसका फ्रैक्शन कैसा आएगा भाई,
ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एलिमेंटल चार्ज, हाफ ऑफ द बेसिक एलिमेंटरी चार्ज जो है ये आ रहा है उसका इंटरफेस में। कहां पर गलती कर रहे हैं भाई हम लोग? तो करंट जो फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर क्वाइट मेजरेबल करंट है, तो फिर भी हमको जो इंटरफेस का जो ये जो डाटा रो, इसमें कोई गलती नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन, वेरी वेल डिटरमिन डेटा है। तो कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे डेरिवेशन में, कोई दिक्कत नहीं। एप्सिलॉन नॉट तो वेल ऑलरेडी आई एम यूजिंग वी आर यूजिंग दिस वैल्यूज मेनी टाइम्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कहां पर हमारा प्रॉब्लम आ गया? हाँ, this result is very strange as we cannot have a fraction of an elementary charge. You will all be angry with me. भाई उसको भी फिर एक्सप्लेन करने जा रहा है, ये कोई तो गड़बड़ी है, उसको नहीं, गड़बड़ी को एक्सेप्ट नहीं करके उसको एक्सप्लेन कर रहा है। भाई गड़बड़ी तो कहीं नहीं, जो डाटा है उसको मैंने ठीक से कैलकुलेट किया, जरूरत आप भी कैलकुलेटर से कर लो। सो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक जो हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोटा छोटा पॉइंट, स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल चार्ज टाइप के ले लेते हैं, जैसा कि कुछ टाइनी बल्ब टाइप के। वो नहीं ले सकते। The quantum electrodynamics taking into considerations like Fermi-Dirac statistics, ये ना ये क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़े हो ना फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो, ये अप्लाई करने के बाद आपको ये एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन आएगा, ये कहीं इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन होगा बाय क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स वेयर दे विल बी यूजिंग द रेफरेंस टू फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। आप एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक कंडक्टिंग स्फीयर है न्यूट्रल, मैंने उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो क्या करेंगे हम लोग? आउटसाइड में कहीं पर भी जाओ तो फील्ड यूनिफॉर्म नजर आएगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज एक तो कहीं इसी टाइम में कहीं पर एक ही जगह में होगा ना, तो उसका तो यूनिफॉर्म फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा? कोई भी एक सरफेस पॉइंट में होगा तो यूनिफॉर्म फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा वो? आपने कभी सोचा नहीं है? अगर 2-3 इलेक्ट्रॉन दिए तभी भी यूनिफॉर्म कैसे होगा? हाँ, अगर 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब बोले हाँ भाई वो लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर 2-3 दिया तो, एक दिया तो फिर भी यूनिफॉर्म फील्ड नजर आएगा। उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नॉट ब्रोकन इनटू पीसेस एंड स्मीयर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ओके, सो उसको भी वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करके डिस्ट्रीब्यूट उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स से ये सब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी आप चिंता छोड़ दो, बस कोई पूछेगा नहीं आपको। इतना बोलो कि भाई अगर 1 होने से भी इज नॉट 1 टाइनी बॉल इलेक्ट्रॉन, इट इज ट्रीटेड एज ए वेव फंक्शन इन as a probability wave function in quantum electrodynamics. So उससे आप प्रूव कर सकते हो कि फील्ड विल बी ऑन एन एवरेज यूनिफॉर्म आउटसाइड। चलो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये एक मैंने क्यों दिया अभी समझ में आएगा होगा। एक चीज तो है कि when there is a discontinuity in the material property at the interface, there will be a charge accumulation. पर ये चार्ज एक्यूमुलेशन आपका एलिमेंटरी चार्ज से भी कम होने का चांस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी देखा ना अभी एग्जांपल से। लेकिन ये आपको चिंता करने की नहीं है, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, एम आई क्लियर? चलो, आई थिंक today we had an entertaining session, easy one. And this type of question which I discussed today, it is there. इरोडॉम में ऐसा एक क्वेश्चन है, तो अगर ये समझ में आ गया तो ये तो कोई इरोड का प्रॉब्लम तो बहुत इजी लगेगा आपको। आपको लगेगा नहीं कि आप इरोडॉम सॉल्व कर रहे हो, आप ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, चलो मैं आपको फिर बाद में मिलता हूं, बहुत very jaldi milta hu with a new very conceptual discussion. It is all for today. Thank you, all the best, have a good day.